اندھیری رات تھی جب تیز ہوا نے شہر نصرت کے دروازوں کو ہلا دیا۔ شہر کے بیچوں بیچ عظیم الشان محل کی بلند دیواروں کے پیچھے بادشاہ زید خان اپنے تخت پر بے چین بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا گرد آلود خط تھا جسے وہ بار بار پڑھ چکا تھا، مگر ہر بار اس کے دل میں بے چینی اور خوف کا طوفان اٹھتا تھا۔ خط پر لکھا تھا: اے بادشاہ، تمہاری سلطنت ایک فقیر کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے اسے نہ ڈھونڈا تو تمہاری سلطنت اور ایمان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ وقت کم ہے، رات کا اندھیرا تمہارا امتحان ہے۔ زید کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس نے اپنی بیٹی شہزادی عائشہ کو بلا بھیجا۔ عائشہ جب کمرے میں آئی تو اس کی آنکھوں میں فکر اور پیار جھلک رہا تھا۔ ابو جان، آپ اس رات کے اندھیرے میں کیوں پریشان ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ زید نے خط اس کے ہاتھ میں دیا اور بولا: عائشہ میری پیاری بیٹی، یہ خط ایک گمنام فقیر نے بھیجا ہے۔ مجھے نہیں پتہ یہ راز کیا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ میری سلطنت اور ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ عائشہ نے خط پڑھا اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ابو جان، اگر اللہ نے ہمیں یہ امتحان دیا ہے تو ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس رات زید اور عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس فقیر کو ڈھونڈیں گے، چاہے اس سفر میں کتنی ہی مشکلات آئیں۔ شہر نصرت کئی صدیوں سے اپنی خوبصورتی اور عظمت کے لیے مشہور تھا۔ یہاں کے بازاروں میں خوشبوئیں پھیلتی تھیں، ریشمی کپڑوں کی چمک دکھائی دیتی تھی اور تاجروں کی آوازیں گونجتی تھیں۔ مگر شہر کے کنارے جہاں گھنا جنگل اور ویران پہاڑ تھے، لوگ ڈر کر وہاں جانے سے کتراتے تھے۔ کہتے تھے کہ ان پہاڑوں میں ایک فقیر رہتا ہے جو رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے اور دلوں کے راز جانتا ہے۔ کوئی اسے رازوں کا رکھوالا کہتا تو کوئی اسے خطرناک سمجھتا۔ بادشاہ زید ایک منصف مزاج اور ایماندار بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی زندگی اللہ کی بندگی اور رعایا کی خدمت میں گزاری، مگر حال ہی میں سلطنت میں عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ چوریاں بڑھ گئی تھیں، افواہیں پھیل رہی تھیں اور دربار میں سازشیں ہو رہی تھیں۔ زید کو لگتا تھا کہ کوئی اس کے خلاف بڑی چال چل رہا ہے اور یہ خط شاید اسی سازش کا حصہ ہو۔ شہزادی عائشہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ہوشیار اور بہادر بھی تھی۔ اس نے بچپن سے اپنے والد سے ایمانداری، وفاداری اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا درس لیا تھا، مگر اس کے دل میں ایک راز تھا۔ وہ بار بار ایک خواب دیکھتی تھی جس میں ایک فقیر اسے چمکدار روشنی کی طرف بلاتا اور کہتا: عائشہ، تیرا ایمان تیری طاقت ہے، اسے مضبوط رکھ کیونکہ اندھیرا قریب ہے۔ اگلی صبح زید نے اپنے وفادار سپہ سالار حارث کو بلا بھیجا۔ حارث ایک بہادر اور ایمان والا جوان تھا جو زید کے لیے جان بھی دے سکتا تھا۔ زید نے اسے خط کے بارے میں بتایا اور کہا: حارث، تم میرے بھائی جیسے ہو۔ میں اور عائشہ اس فقیر کو ڈھونڈنے جنگل جا رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ حارث نے سر جھکا کر کہا: بادشاہ سلامت، میری جان آپ کے لیے وقف ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، چاہے راستے میں موت ہی آ جائے۔ تینوں نے سادہ کپڑے پہنے تاکہ کوئی انہیں بادشاہ یا شہزادی نہ پہچانے۔ عائشہ نے چہرہ نقاب سے ڈھانپ لیا اور زید نے تلوار کمر سے باندھ لی۔ انہوں نے چند گھوڑے، کچھ کھانے پینے کا سامان اور ایک نقشہ لیا جو جنگل کے راستوں کی نشاندہی کرتا تھا۔ جب وہ شہر کے دروازوں سے باہر نکلے تو چاروں طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور دور پہاڑوں سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی انہیں پکار رہا ہو۔ عائشہ نے اپنے والد کو دیکھا اور بولی: ابو جان، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ہمیں رہنمائی دیں گے۔ زید نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا: میری بیٹی، تیرا ایمان میری ہمت ہے، چلو اب وقت ہے اس راز سے پردہ اٹھانے کا۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی اندھیرا گہرا ہو گیا۔ بلند درختوں کی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں، راستے تنگ اور پتھریلے تھے اور ہر قدم پر خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ رات ہونے لگی تو انہوں نے ایک چھوٹی جگہ پر ڈیرا ڈالا۔ حارث نے آگ جلائی اور تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ عائشہ نے اپنا خواب بیان کیا: ابو جان، مجھے لگتا ہے کہ وہ فقیر ہمیں کسی بڑے راز کی طرف لے جا رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہ سفر نہ صرف سلطنت بلکہ ہمارے ایمان کے لیے بھی ہے۔ زید نے سوچتے ہوئے کہا: شاید یہ اللہ کا امتحان ہے عائشہ، ہمیں صبر اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ اچانک آگ کی روشنی میں ایک سا نظر آیا۔ حارث نے فوراً تلوار نکالی اور بولا: کون ہے وہاں؟ اندھیرے سے ایک بوڑھا آدمی نکلا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے گہری آواز میں پوچھا۔ زید آگے بڑھا اور بولا: ہم ایک فقیر کو ڈھونڈ رہے ہیں جسے رازوں کا رکھوالا کہتے ہیں، کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ بوڑھے نے ہنس کر کہا: رازوں کا رکھوالا خود تمہیں ڈھونڈ لے گا، مگر پہلے تمہیں اپنے دل کے راز کھولنے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ تینوں حیران رہ گئے۔ عائشہ بولی: ابو جان، یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ حارث نے کہا: بادشاہ سلامت، ہمیں چوپ نہ رہنا ہوگا، یہ جنگل رازوں اور خطروں سے بھرا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں جنگل کے گھنے درختوں سے چھن کر زمین پر پڑیں، زید، عائشہ اور حارث آگے بڑھے۔ راستے میں انہیں ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا۔
गांव के लोग गरीब थे, उनके चेहरों पर परेशानी के आसार नुमाया थे। अचानक एक औरत रोती हुई उनके पास दौड़कर आई। इसकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। हमारे बच्चों को चोरों ने अगवा कर लिया है, इसने हिचकियों के दरमियान कहा। वो उन्हें पहाड़ों में ले गए हैं, बराहे करम हमारी मदद करें। जैद का दिल रहम से भर आया। इसने आयशा और हारिस की तरफ देखा, इसकी आंखों में अज़्म झलक रहा था। बादशाह हो या आम इंसान, अल्लाह ने हमें मजलूम की मदद का हुक्म दिया है, हम उन बच्चों को जरूर बचाएंगे। आयशा ने नरमी से कहा, अबू जान, ये हमारा पहला इम्तिहान हो सकता है। अल्लाह हमें देख रहा है कि हम अपने ईमान का सबूत कैसे देते हैं। हारिस ने गांव वालों से चोरों के बारे में पूछा, उनकी अलामात और ठिकानों का पता लगाया। फिर तीनों एक खतरनाक पथरीले पहाड़ी रास्ते की तरफ निकल पड़े। वह तेज थी और रास्ता दुश्वार, मगर उनके दिल में हिम्मत और अज़्म मौजूद था। रास्ते में अचानक चोरों का एक गिरोह सामने आ गया। उनके हाथों में तलवारें और चेहरों पर शरारत की चमक थी। हारिस ने बिजली की तरह तलवार निकाली और बहादुरी से उनका मुकाबला किया। इसकी तलवार हवा में चमकती और चोरों को पीछे हिटती गई। उधर आयशा ने अपनी अक्लमंदी से काम लिया। वो चुपके से एक तरफ को सरकी और एक गार का पत्ता लगाया जहां बच्चों को कैद किया गया था। इसने होशियारी से चोरों की नजरों से बचते हुए बच्चों को आजाद किया। बच्चों के चेहरे खौफ से सितमसाज थे, मगर आयशा की नरम आवाज और प्यार भरे अंदाज ने उन्हें तसल्ली दी। जब बच्चों को गांव वापस लाया गया तो उनकी मां ने खुशी और गम के मिले जले आंसुओं के साथ जैद के हाथ चूमे। अल्लाह आपको जजा दे, इसने लरसती आवाज में कहा। आपने हमारी जिंदगियां बचा ले। जैद ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और बोला, ये अल्लाह का करम है, हमने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। लेकिन जब वो वापस मुड़े तो गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें रोका। इसकी आवाज संजीदा और गहरी थी। ए मुसाफिरों, तुम जिस फकीर को ढूंढ रहे हो वो कोई आम इंसान नहीं, वो राजों का रखवाला है। इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा, वफादारी, ईमानदारी और कुर्बानी। तुमने अभी वफादारी का इम्तिहान पास किया है, मगर आगे के रास्ते इससे भी कठिन हैं। रात का अंधेरा फैल चुका था। तीनों जंगल के घने साए तले आगे बढ़ रहे थे। हवा की सरसराहट और जानवरों की अजीब आवाजें फिजा में गूंज रही थीं। अचानक एक शख्स उनके सामने नमूदार हुआ। इसने शाहाना लिबास पहना था और चेहरे पर पुरएतमाद मुस्कुराहट थी। मैं सल्तनत का वफादार सरदार हूँ, इसने दावा किया। मैं तुम्हें फकीर तक ले जा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे तुम्हारा वो खत चाहिए। ये जैद ने खत को मजबूती से थामा और सोच में डूब गया। आयशा ने फौरन आगे बढ़कर नरमी मगर पुख्तगी से कहा, अबू जान होशियार रहे, मेरा दिल कहता है कि ये धोखा है। हारिस ने तलवार उठाई, इसकी आंखों में शक झलक रहा था। अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दो, इसने सख्त लहजे में कहा। वो शख्स बुलंद आवाज में हंसा और बोला, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। ठीक है, मगर याद रखो, इस जंगल में भरोसा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। ये कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया जैसे हुआ का झोंका। जैद ने गहरी सांस ली, इसका चेहरा संजीदा था। आयशा, हारिस, हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा, लेकिन सबसे बढ़कर अल्लाह पर। ये सफर हर कदम पर हमें आजमाएगा। रात गहरी होती गई। दौर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। आयशा ने अपने दिल पर हाथ रखा, इसकी आंखों में चमक थी। अबू जान, मुझे लगता है कि फकीर करीब है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हमारा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। तीनों आग के गिर्द बैठे थे, शोले उनके चेहरों को रोशनी दे रहे थे। अचानक हुआ का एक तेज झोंका आया और आग बुझ गई। अंधेरा छा गया, लेकिन इसी लम्हे एक चमकदार नूर फिजा में फैला। नूर के बीच एक साया उभरा। एक गहरी पुरस्रार आवाज गूंजी, ए मुसाफिरों, तुमने वफादारी का इम्तिहान पास किया, लेकिन अब ईमानदारी का इम्तिहान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या तुम अपने दिल के राज खोलने को तैयार हो? जैद, आयशा और हारिस ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिलों में खौफ था, उम्मीद थी और ईमान का जोश भी। क्या वो इस अगले इम्तिहान का सामना कर पाएंगे? वो राज किया था जो सल्तनत और उनके ईमान को हिला सकता था। अंधेरा मजीद गहरा हो गया। जंगल की खामोशी को हुआ की सरसराहट और दूर से आने वाली अजीब आवाजें तोड़ रही थीं। जैद, आयशा और हारिस इस चमकदार नूर की तरफ बढ़े, दिल में खौफ और उम्मीद का तूफान समाये हुए। उनके ईमान ने उन्हें हिम्मत दी और वो आगे बढ़ने लगे। अचानक नूर के बीच से एक साया उभरा। ये वही फकीर था, लंबी सफेद दाढ़ी, पटे हुए कपड़ों में मलबूस और आंखों में ऐसी चमक जो दिल के राजों तक जा पहुंचती थी। इसने अपना असा जमीन पर टेका और गहरी धीमी आवाज में बोला, ए मुसाफिरों, तुमने वफादारी का इम्तिहान पास किया, लेकिन अब ईमानदारी का इम्तिहान है। क्या तुम अपने दिल के राज खोलने को तैयार हो? जैद ने हिम्मत बांधी और आगे बढ़कर कहा, ए फकीर, हम यहाँ अपनी सल्तनत के राज और अपने ईमान की हिफाजत के लिए आए हैं। बताओ हमें क्या करना है? फकीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, राज खोलने से पहले तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। हर एक को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का एतराफ करना होगा, वरना ये जंगल तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। आयशा ने अपने वालिद की तरफ देखा, इसकी आंखों में अज़्म था।
हारिस ने जमीन की तरफ नजरें झुका लें, इसका चेहरा सोच में डूबा हुआ था। तीनों के दिल धड़क रहे थे। ईमानदारी का ये इम्तिहान आसान न था, क्योंकि अपने दिल के राज खोलना हर इंसान के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। फकीर ने अपना असा बुलंद किया और उसके हाथ से जैसे जादुई रोशनी फूटी। अचानक तीनों के सामने 3 अलग अलग रास्ते नमूदार हुए। हर रास्ता गहरे अंधेरे में डूबा था और दूर हर रास्ते के आखिर में एक आईना चमक रहा था, जैसे सितारों की रोशनी अंधेरे को चीर रही हो। फकीर की गहरी आवाज गूंजी, हर एक को अपना रास्ता चुनना होगा। इस आईने के सामने तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सच्चा एतराफ करना होगा। अगर तुमने सच बोला तो रास्ता खिल जाएगा, मगर अगर झूठ बोला तो ये अंधेरा तुम्हें हमेशा के लिए अपने कैद में ले लेगा। वो ज़ैद, आयशा और हारिस ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर अज़्म और खौफ का मलगूबा था। आयशा ने हिम्मत बांधी, इसकी आवाज़ में पुख्तगी झलक रही थी। अबू जान, अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक देगा। चलिए इस इम्तिहान का सामना करते हैं। तीनों ने सर झुका कर दुआ की और अलग अलग रास्तों पर कदम रख दिया। ज़ैद का रास्ता पथरीला और अंधेरा था, जैसे कोई बेइंतहा सितमसाज रात इसे निगलना चाहती हो। हर कदम पर हुआ की सर्द सरसराहट और अजीब आवाजें इसे चौंका रही थीं, गोया कोई इसे गहरी निगाहों से देख रहा हो। आखिरकार वो आईने के सामने पहुंचा। आईने में इसका चेहरा नजर आया, एक थका हुआ बादशाह जिसकी आंखों में परेशानी की लकीरें वाज़ेह थीं। एक गहरी पुरस्रार आवाज गूंजी, ए ज़ैद, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ज़ैद ने गहरी सांस ली, इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच में डूब गया, मैं एक आदिल बादशाह हूँ, मेरी कमजोरी क्या हो सकती है? फिर उसके जहन में वो लम्हात गूंज उठे जब उसने अपने दरबारियों पर अंधा भरोसा किया था। इसने आईने की तरफ देखा, इसकी आवाज़ लरज रही थी मगर सच्चाई से भरपूर थी। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा अंधा भरोसा है। मैंने अपने दरबारियों पर भरोसा किया, हालांकि कुछ ने मेरी पीठ पीछे धोखा दिया। मैंने रियाया की भलाई के लिए सब कुछ किया, मगर शायद उन लोगों को नजरअंदाज किया जो मेरे करीब थे और मेरी सल्तनत को नुकसान पहुंचा रहे थे। आईना चमक उठा जैसे सूरज की किरण अंधेरे को चीर रही हो। रास्ता खिल गया। ज़ैद के दिल से एक बोझ उतर गया। इसने सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे बढ़ गया। आयशा का रास्ता कांटों और घनी झाड़ियों से अटा हुआ था। तेज हुआ इसके निकाब को उड़ा रही थी और कांटों ने इसके कपड़ों पर खराशें डाल दी, मगर उसकी हिम्मत ना डगमगा। वो आईने तक पहुंची। आईने में इसका चेहरा झलका, एक बहादुर शहजादी, मगर उसकी आंखों में खौफ की हल्की सी झलक छपी थी। एक आवाज गूंजी, ए आयशा, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आयशा के दिल में तूफान उठा। इसे वो ख्वाब याद आए जिनमें फकीर इसे चमकदार नूर की तरफ बिला रहा था। वो हमेशा अपने ईमान पर कायम रहने की कोशिश करती थी, मगर एक राज इसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसने दिल पर हाथ रखा, आंखें बंद की और फिर आईने से मुखातिब हुई, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा खौफ है। मैं बहादुर बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे दिल में ये डर है कि अगर मैं नाकाम हुई तो मेरी नाकामी मेरे अबू जान और सल्तनत को तबाह कर देगी। मैं अल्लाह पर भरोसा करती हूँ, मगर कभी कभी मेरा दिल डर जाता है कि मेरा ईमान कमजोर पड़ जाएगा। आईना रोशन हुआ, रोशनी चारों तरफ फैल गई। रास्ता खिल गया। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसके दिल में सुकून का समंदर मौजन हो गया। इसने सर झुकाकर दुआ की, ए अल्लाह, मेरा ईमान मजबूत कर और मुझे हिम्मत अता फरमा। वो हारिस का रास्ता सबसे कठिन था, एक तन पथरीला रास्ता जो गहरी खाई के किनारे से गुजर रहा था। हुआ के तेज झोंकों ने इसे लड़खड़ाने की कोशिश की, मगर उसने तलवार मजबूती से थाम रखी थी। वो आईने तक पहुंचा। आईने में इसका चेहरा नजर आया, एक दलेर सिपाही, मगर उसकी आंखों में उदासी की छाप थी। आवाज गूंजी, ए हारिस, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हारिस ने जमीन की तरफ देखा, इसका दिल भारी हो गया। वो एक वफादार सिपाही था, हमेशा अपने बादशाह के लिए जान देने को तैयार, मगर एक राज इसे अंदर ही अंदर सता रहा था। इसने हिम्मत की आईने की तरफ देखा और उसकी आवाज में सच्चाई और शर्मिंदगी का मलगूबा था। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा गुरूर है। मैंने हमेशा सोचा कि मेरी ताकत और तलवार ही सब कुछ है, मगर एक बार जब मेरा गांव खतरे में था, मैं अपने खानदान को बचाने में नाकाम हो गया क्योंकि मैंने दूसरों की मदद ना ली। मेरा गुरूर मेरी नाकामी का सबब बना और आज तक वो दुख मुझे खाए जा रहा है। आईना चमक उठा, रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया और रास्ता खिल गया। हारिस की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे बढ़ गया। तीनों अपने अपने इम्तिहान से गुजर कर दोबारा मिले। उनके चेहरों पर सुकून था, मगर दिल अभी भी अगले इम्तिहान के खौफ से धड़क रहे थे। फकीर उनके सामने खड़ा था, इसकी आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट झलक रही थी। तुमने ईमानदारी का इम्तिहान पास कर लिया। इसकी आवाज़ गहरी और पुरज़्म थी, मगर अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है, कुर्बानी का इम्तिहान। इससे पहले तुम्हें एक बड़े धोखे से बचना होगा। अचानक जंगल में शोर उठा, घोड़ों की चाप और तलवारों की झनकार फिजा में गूंजने लगी। एक गिरोह मुसल्लह आदमियों का उनकी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उनकी क़ियादत वही शख्स कर रहा था जो पहले खत मांग रहा था।
इसका चेहरा गुस्से और लालच से भरा था। ए ज़ैद, अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। इसने जोर से चलाया, वो खत दो वरना तुम तीनों यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। ज़ैद ने फौरन तलवार निकाली, इसकी आंखों में बादशाह का अज़्म झलक रहा था। हारिस बिजली की तरह आगे बढ़ा और अपने बादशाह के सामने डट कर खड़ा हो गया, तलवार तैयार, दिल में वफादारी का जोश। आयशा ने अपने वालिद का हाथ मजबूती से थामा और बोली, अबू जान, ये धोखा है, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। फ़कीर आगे बढ़ा, इसका असा हुआ में बुलंद था। ए ज़ैद, ये धोखा तुम्हारी सल्तनत के अंदर से है। ये शख्स तुम्हारे दरबार का सरदार है जो ताकत के लालच में तुम्हें धोखा देना चाहता है, मगर याद रखो, ईमान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हारिस ने बहादुरी से मुकाबला किया और ज़ैद ने अपनी अक्ल से दुश्मनों को पीछे हटाया। आयशा ने एक चालाकी से दुश्मन के घोड़ों को भगाया और आखिरकार वो गिरोह भाग गया, लेकिन इस लड़ाई में हारिस के बाजू पर जख्म लग गया। आयशा ने फौरन अपना दोपट्टा फाड़कर उसके जख्म पर बांधा और बोली, हारिस भाई, तुमने हमें बचा लिया, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। हारिस ने मुस्करा कर कहा, शहजादी, ये मेरा फ़र्ज़ है। लड़ाई के बाद फ़कीर ने उन्हें एक गार की तरफ ले जाया। गार के अंदर एक छोटा सा कमरा था जहाँ दीवारों पर अजीब नक्कूश बने थे। फ़कीर ने कहा, ए ज़ैद, ये ख़त जो तुम्हारे पास है, इसमें तुम्हारी सल्तनत का सबसे बड़ा राज छुपा है। सदियों पहले तुम्हारे आबाओ अजदाद ने एक वादा किया था कि वो अल्लाह की राह में एक खजाना छुपाएंगे जो सिर्फ इसी को मिलेगा जो वफादारी, ईमानदारी और कुर्बानी के इम्तिहान से गुजरे। लेकिन तुम्हारे दरबार में कुछ लोग इस खजाने के पीछे हैं और वो तुम्हें तबाह करना चाहते हैं। ज़ैद ने हैरत से पूछा, ये खजाना क्या है और मेरी सल्तनत को कैसे बचाया जा सकता है? फ़कीर ने कहा, खजाना सिर्फ माल और दौलत नहीं बल्कि ईमान और सच्चाई की ताकत है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें कुर्बानी का इम्तिहान देना होगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये इम्तिहान तुम्हारे दिल को हिला देगा। रात गहरी हो गई और गार के बाहर अजीब आवाजें गूंजने लगे। आयशा ने अपने वालिद का हाथ पकड़ा और बोली, अबू जान, जो भी हो, हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे, अल्लाह हमारे साथ है। ज़ैद ने सर झुकाया और दुआ की कि अल्लाह हमें हिम्मत, सब्र और ईमान अता फरमा। गार के अंदर फ़कीर ने एक पुराना संदूक खोला जिसमें से एक चमकदार नूर निकला। इस नूर ने तीनों के चेहरों को रोशन कर दिया, लेकिन अचानक जमीन लरजने लगी। फ़कीर ने कहा, ए मुसाफिरों, अब कुर्बानी का वक्त करीब है, क्या तुम अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करने को तैयार हो? ज़ैद, आयशा और हारिस के दिल धड़कने लगे। क्या ये कुर्बानी उनकी जान होगी, उनका ईमान, कोई और राज जो अभी तक उन पर नहीं खुला? सस्पेंस और जज्बात का तूफान उन्हें घेर रहा था। गार के अंदर चमकदार नूर अभी तक जगमगा रहा था, लेकिन जमीन के लरजने से बादशाह ज़ैद, शहजादी आयशा और हारिस के दिल धड़क रहे थे। फ़कीर की गहरी आवाज़ दोबारा गूंजी, ए मुसाफिरों, कुर्बानी का इम्तिहान सबसे मुश्किल है। ये वो लम्हा है जब तुम्हें अपनी सबसे अजीज चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगी। क्या तुम तैयार हो? ज़ैद ने अपनी बेटी आयशा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में फिक्र और ईमान का मलगूबा था। हारिस ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी, लेकिन इसके चेहरे पर भी एक अजीब सा खौफ झलक रहा था। आयशा ने आगे बढ़कर फ़कीर से पूछा, ए बाबा, ये कुर्बानी क्या है? क्या हमें अपनी जान देना होगी? फ़कीर ने मुस्कुरा कर कहा, जान देना आसान है बेटी, लेकिन असली कुर्बानी वो है जो तुम्हारे दिल को तोड़ दे और फिर भी तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। इस संदूक में सल्तनत का राज छुपा है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम में से एक को अपनी सबसे अजीज चीज छोड़नी होगी। ज़ैद ने गहरी सांस ली और बोला, ये अल्लाह हमें हिम्मत दे, हम तैयार हैं। गार में एक अजीब सी खामोशी छा गई और नूर और तेज हो गया। कुर्बानी का इम्तिहान शुरू हो चुका था। फ़कीर ने संदूक की तरफ इशारा किया। इसने कहा, इस संदूक को खोलने के लिए तुम तीनों को अपनी सबसे अजीज चीज का नाम बताना होगा और फिर इसे अल्लाह की राह में छोड़ने का अहद करना होगा। लेकिन खबरदार, अगर तुम सच न बोले तो ये गार तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। ज़ैद सबसे पहले आगे बढ़ा। इसके दिल में तूफान उठ रहा था। इसने सोचा, मेरी सबसे अजीज चीज मेरी सल्तनत है, जिसे मैंने सालों से इंसाफ और ईमानदारी से चलाया। लेकिन नहीं, मेरी सबसे अजीज चीज मेरी बेटी आयशा है। इसका दिल कांप गया, लेकिन फिर इसे अल्लाह का नाम याद आया। इसने संदूक की तरफ देखा और बोला, मेरी सबसे अजीज चीज मेरी सल्तनत है, क्योंकि इसके जरिए मैंने अपनी रियाया की खिदमत की। लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं अपना तख्त और सल्तनत अल्लाह की राह में छोड़ने को तैयार हूँ, ताकि मेरी रियाया और मेरा ईमान महफूज रहे। संदूक से एक चमक उठी और ज़ैद के सामने एक नज़ारा उभरा। इसकी सल्तनत में अमन था, लोग खुशहाल थे और दरबार से धोखा गायब हो चुका था। फ़कीर ने कहा, ए ज़ैद, तेरी कुर्बानी कबूल हुई, क्योंकि तूने अपने दिल की सच्चाई दिखाई। आयशा का दिल धड़क रहा था। वो अपने वालिद के पास खड़ी हुई और सोचने लगी, मेरी सबसे अजीज चीज मेरा अबू जान है, लेकिन क्या मैं उन्हें छोड़ सकती हूँ? इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर इसे अपना वो ख्वाब याद आया जहाँ फ़कीर ने कहा था,
तेरा ईमान तेरी ताकत है। इसने हिम्मत की और बोली, मेरी सबसे अजीज चीज़ मेरी आज़ादी है। मैंने हमेशा ख्वाब देखा कि एक दिन मैं अपने लोगों के लिए कुछ बड़ा करूं, लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं अपनी आज़ादी और अपने ख्वाब अल्लाह की राह में छोड़ने को तैयार हूं, ताकि मेरी सल्तनत और मेरा ईमान महफूज रहे। संदूक से एक और चमक उठी और आयशा के सामने एक नज़ारा उभरा। वो अपने लोगों के दरमियान थे, उन्हें इल्म और ईमान सिखा रही थी और उसका चेहरा नूर से जगमगा रहा था। फ़कीर ने मुस्करा कर कहा, ये आयशा, तेरा ईमान तेरी ताकत है, तेरी कुर्बानी कबूल हुई। हारिस के हाथ कांप रहे थे। इसने अपनी तलवार नीचे रखी और सोचा, मेरी सबसे अजीज चीज़ मेरी बहादुरी और मेरी तलवार है, जिसे मैंने हमेशा अपने बादशाह और सल्तनत की हिफाजत की। इसका दिल भारी हो गया क्योंकि इसे अपने गांव की वो नाकामी याद आ गई जब इसका गुरूर उसकी राह में आड़े आया था। इसने संदूक की तरफ देखा और बोला, मेरी सबसे अजीज चीज़ मेरी तलवार और मेरी बहादुरी है, लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं अपनी तलवार और अपनी ताकत अल्लाह की राह में छोड़ने को तैयार हूँ, ताकि मेरा बादशाह और मेरी सल्तनत महफूज रहे। संदूक से तीसरी चमक उठी और हारिस के सामने एक नज़ारा उभरा। वो नहते था, लेकिन इसके गिर्द लोग इसकी इज्जत कर रहे थे क्योंकि इसकी ताकत अब इसके ईमान और दिल में थी। फ़कीर ने कहा, ये हारिस, तेरी कुर्बानी कबूल हुई। तीनों की कुर्बानियों के बाद संदूक खुद ब खुद खिल गया। अंदर से एक पुराना तूमार और एक चमकदार पत्थर निकला। फ़कीर ने तूमार उठाया और बोला, ये तूमार तुम्हारे आबाओ अजदाद का वदा है जो उन्होंने अल्लाह से किया था। इसमें लिखा है कि सल्तनत का असली खजाना ईमान, सच्चाई और इंसानियत की खिदमत है। ये चमकदार पत्थर इस बात की निशानी है कि जो ईमान पर कायम रहे, अल्लाह इसे हर अंधेरे से निकालता है। जैद ने तूमार पढ़ा। इसमें लिखा था कि सदियों पहले जैद के आबाओ अजदाद ने एक खजाना छुपाया था, न सोना चांदी बल्कि इल्म, ईमान और इंसाफ के उसूल जो सल्तनत को हमेशा मजबूत रखेंगे। लेकिन कुछ लालची दरबारियों ने इस राज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की और इसीलिए ये इम्तिहान रखा गया था। फ़कीर ने कहा, ए ज़ैद, तुमने वफादारी, ईमानदारी और कुर्बानी के इम्तिहान पास कर लिए। अब ये पत्थर तुम्हारे ईमान की ताकत है। इसे अपने दरबार में रखो और ये तुम्हें धोखे और बुराई से बचाएगा। जब तीनों गार से बाहर निकलने लगे तो अचानक जमीन दोबारा लर्ज़ और वो वही लालची सरदार अपने मुसल्ला गिरोह के साथ उनके सामने आ खड़ा हुआ। इसने जोर से कहा, ए ज़ैद, तुमने राज पा लिया, लेकिन ये पत्थर मेरा होगा। इसे दो वरना तुम तीनों यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। ज़ैद ने पत्थर मजबूती से पकड़ा और आयशा ने अपने वालिद के पीछे खड़े होकर दुआ की, ए अल्लाह, हमें बचा। हारिस ने अपनी जख्मी हालत में भी तलवार उठाई, लेकिन इसे याद आया कि इसने अपनी ताकत कुर्बान कर दी थी। अचानक पत्थर से एक जोरदार नूर निकला जिसने दुश्मनों की आंखों को अंधा कर दिया। सरदार और उसका गिरोह खौफजदा होकर भाग गए, लेकिन इसी लम्हे एक और हैरान कुन मोड़ आया। सरदार ने भागते हुए एक जहरीला तीर ज़ैद की तरफ फेंका। आयशा ने फौरन अपने वालिद को धक्का दिया और तीर उसके कंधे में लगा। आयशा, ज़ैद चीखा और अपनी बेटी को बाजुओं में ले लिया। आयशा की आंखों में दर्द था, लेकिन वो मुस्कुराई और बोली, अबू जान, मैं ठीक हूँ, अल्लाह ने हमें बचा लिया। हारिस ने जल्दी से आयशा के जख्म पर पट्टी बांधी और फ़कीर ने आगे बढ़कर कहा, ये आयशा, तेरी कुर्बानी ने इस पत्थर की ताकत को बेदार किया। ये नूर अब तुम्हारी सल्तनत को हमेशा महफूज रखेगा। तीनों शहर नुसरत वापस लूटे। ज़ैद ने पत्थर को दरबार के वस्त में रखा और उसके नूर ने हर दिल को रोशन कर दिया। लालची दरबारियों को पकड़ लिया गया और सल्तनत में एक बार फिर इंसाफ और अमन कायम हो गया। आयशा का जख्म आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुआ और उसने अपने लोगों को इल्म और ईमान सिखाना शुरू किया। हारिस ने तलवार छोड़ दी, लेकिन इसकी बहादुरी अब उसके दिल और ईमान में थी। एक रात ज़ैद, आयशा और हारिस महल की छत पर बैठे आसमान को देख रहे थे। आयशा ने कहा, अबू जान, इस सफ़र ने हमें सिखाया कि असली खजाना ईमान, सच्चाई और कुर्बानी है। ज़ैद ने मुस्करा कर कहा, बेटी, अल्लाह ने हमें आजमाया और हमने इसका शुक्र अदा किया। ये पत्थर सिर्फ एक निशानी है, लेकिन असली ताकत हमारे दिलों में है। फ़कीर का साया दौर से नजर आया और उसकी आवाज़ गूंजी, ए मुसाफिरों, तुमने राज पा लिया। अब अपने ईमान को मजबूत रखो, क्योंकि अल्लाह हमेशा सच्चों के साथ है। जैसे ही फ़कीर गायब हुआ, आयशा ने अपने वालिद का हाथ पकड़ा और बोली, अबू जान, क्या आपको लगता है कि हमने सब कुछ सीख लिया? ज़ैद ने गहरी सांस ली और बोला, बेटी, जिंदगी एक मुसलसल इम्तिहान है, लेकिन जब तक हमारा ईमान मजबूत है, अल्लाह हमें राह दिखाता रहेगा। आसमान पर एक चमकदार सितारा जगमगाया और तीनों ने सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहानी खत्म हुई, लेकिन उनके दिलों में एक सवाल रह गया, क्या जिंदगी के अगले इम्तिहान के लिए वो